Kashmir issue, which is part of our foreign policy, and we cannot ignore this issue because this is part and parcel of our foreign policy and one of the most important, well-defined national interest of Pakistan. So please write a comment. I can't ignore Kashmir issue because it is part and parcel of our foreign policy, as well as one of the significant indicator of our national interest. Every nation has its foreign policy and national interest. So one of the clear example of our foreign policy and national interest, that is Kashmir. Whether we are right or wrong, but it is our foreign policy and it is our national interest, according to the realism school of thought. So please write a comment that I cannot ignore Kashmir issue during my preparation because it is part of the foreign policy of Pakistan and a clear indicator of, significant indicator of our national interest. Please write this comment, and if I am audible and visible, so please like this video broadcast, plus share it in 3 WhatsApp groups and save 2. So Maha Arai has written, I can't ignore Kashmir issue because it is the part and parcel of our foreign policy, as well as a clear indicator of our national interest. National interest. Chaudhry Sikandar, I can't ignore Kashmir issue as it is part and parcel of our foreign policy and a clear indicator of our national interest. National interest is important. Foreign policy, national interest. Can anybody quickly copy paste from mofa.com.pk, foreign policy of Pakistan? Anybody quickly please go to mofa.com.pk. There is a button, foreign policy. Copy paste the whole paragraph here and you see that Kashmir is part of our foreign policy. mofa.com.pk .gov, I think something like that. mofa.com.gov. MOFA means Ministry of Foreign Affairs, Pakistan. Google it, Minister of Foreign Affairs, MOFA, Pakistan. You go to the website of Minister of Foreign Affairs. Please read that website. Sometime I give you some current developments, but you can read it yourself also. Copy paste the paragraph of foreign policy. This paragraph you have to learn word by word. You have to learn it by heart. By heart. Because that is the official position of the national interest and foreign policy of Pakistan. And this is according to the realism school of thought. Realism. मतलब रियलिटी हमें ये कहती है कि भाई कश्मीर को आप इग्नोर ना करें. आइडियलिज्म, लिबरलिज्म कहते हैं भाई जी आराम से रहो, जंग जदल मत करो, छोड़ो जी, खर्चे मर्चे मत करो, एजुकेशन ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है. तो ये आइडियल बातें हैं. आइडियल का मतलब गलत नहीं होता. आइडियल बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वो होती नहीं है. ये सारे लोग जो है पागल नहीं है कि मिसाइलों पे और न्यूक्लियर बॉम्ब और फौज पे इतने खर्चे करते हैं. तो ये सारे अंधे नहीं होते. ये बेसिकली रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, रियलिटी को फॉलो करते हैं.
ये रियलिटी में रहते हैं। ये कोई फॉरवर्ड शरवाउस का नहीं है कि जी फेसबुक में किसने लिखा, ये जो दहशत गर्दी है इसकी पीछे वर्दी है, ये कोई असर मसर नहीं होता इन चीज़ों का, क्योंकि वो रियलिटी में जाते हैं। रियलिटी वाले लोग जो होते हैं वो बातों में नहीं आते। तो बिलाल अजीज़ ने हमें दिया है ये पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आपको रट्टा लगाना है, पक्का याद तैयार करना है। ये कहाँ से लिया है? मोफा, MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। In light of the guiding principles laid down by the founding fathers and the constitution is also aspirations of the people of Pakistan, the objectives of foreign policy can be summarized as under। ये बेहतरीन वर्ड्स है। ऑफिशियल लैंग्वेज के भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि जी मैं क्या लिखूं, मैं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखूं। तो ये जो सरकारी हमारे मिनिस्ट्रीज़ है उनकी वेबसाइट को कभी कभी पढ़ा करें। प्लानिंग कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, तो इनके वेबसाइट्स को पढ़ा करें। हालांकि कोई ख़ास वेबसाइट नहीं होते, जिस तरह के पाकिस्तान सारी चीज़ें 2 नंबर है तो ये भी 2 नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी ज़बान होती है इसमें। Promotions of Pakistan as a dynamic, progressive, moderate and democratic Islamic country। अब ये पॉइंट जो है ये आपकी सरकारी वजारत खारजा ने लिखा है। तो कल अगर आप ये पॉइंट लिखोगे एग्जाम में, प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान एज अ डायनामिक, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट एंड डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री, तो कोई आपसे वो पूछ गछ नहीं कर सकते। Developing friendly relations with all countries of the world, especially major powers and immediate neighbors। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। पूरी दुनिया के साथ रियलिटी क्या है? पावर के साथ जी, जंगल में क्या कहते हैं, बेर, तो शेर के साथ बेर क्या होता है, तो जंगल में आप शेर के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तो आपने जो है वीटो पावर जो है, अमेरिका, फ्रांस, ये क्यों इतना सारा लोग आ जाते हैं, रोड ब्लॉक होते हैं, लोग मर जाते हैं। मजाल है कि एक फ्रांस के इन्वेस्टर को हम निकाला, क्यों निकाला? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। मेजर पावर्स, पावर के साथ जो है हमने ताल्लुकात रखने हैं, वरना पावर आपको रोन लेता है। चौधरी के साथ जो है आप गड़बड़ नहीं कर सकते। इमीडिएट नाइबर्स भी ज़रूरी है, हालांकि वो नहीं करते हम, लेकिन बहरहाल फॉरेन पॉलिसी है हमारी। Safeguarding national security and geostrategic interest including कश्मीर। ये मैं इस पॉइंट पे आना चाहता था कि जब आप कश्मीर पे बात शुरू करते हैं तो आप यहां से शुरू करेंगे। That Kashmir is part of our geostrategic interest, safeguarding national security including कश्मीर। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं, कंसोलिडेटिंग और कमर्शियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये अब लिबरलिज्म आ गया, लिबरलिज्म आइडियलिज्म आ गया। अभी तक रियलिज्म चल रहा था, रियल बातें। सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा अब्रॉड, ये जो आजकल सऊदी अरब में हो गया और आगे पीछे, तो ये डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा का मतलब है पाकिस्तानी कम्युनिटी अब्रॉड, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, जो आपको आपके GDP का 1/3 तकरीबन वो बेचते हैं। जितना एग्रीकल्चर आपको देता है, आपको पता है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कितना देता है? तकरीबन 29% 29% जो है आपको इंडस्ट्रीज देती है। उसके बाद आपका तकरीबन 60% जो है वो सर्विसेज देती है। तो जितना एग्रीकल्चर आपको देता है, पूरा पाकिस्तान में जितनी ज़मीनें हैं, जितनी गंदम, मकई, ये आलू और मैंगो और ऑरेंजेस, ये जितना पैसा पाकिस्तान को पर ईयर देता है, इतना आपके फॉरेन रेमिटेंसेस आपको मिलते हैं। एक तरफ पूरा एग्रीकल्चर पाकिस्तान में, जितना भी एग्रीकल्चर है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, तो वो तमाम इंडस्ट्रीज के बराबर जो है आपको आपके फॉरेन रेमिटेंसेस जो है
जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी काम करती है मिडिल ईस्ट में या यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, तो वहाँ से ये आपको पैसे भेजती है, तो वो भी हमारी जीडीपी का हिस्सा है। इस वजह से ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। इंश्योरिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अच्छा, जो महाअराई ने दिया है उधर से, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सीक्स टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एडवांस पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट इन द एक्सटर्नल डोमेन। अब नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, अब मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं यहाँ लेक्चर डिलीवर करूँ। बेशक वहाँ 50 लोग मर रहे हैं, उधर 50 लोग मुझे कहते हैं कि आ जाओ जी नईम खान, हम आपको $100 देते हैं। कोई मुझे कहता है जी आ जाओ, ये हम आपको मिठाई के डब्बे देंगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इधर है कि मैं लेक्चर अटेंड करूं। तो पर्सनल लेवल में इसको कहते हैं ईगोइज्म, नेशनल लेवल में इसको कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन ये जी मेरा इंटरेस्ट है इसमें, जिसको खुद गरजी कहते हैं। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। The Foreign Ministry contributes towards safeguarding Pakistan's security and advancing Pakistan's development agenda for progress and prosperity. अब ये जो है, जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी क्यों फॉरेन पॉलिसी में आता है? ये इसलिए आता है कि वॉर इज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, नॉट बाय आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये पॉइंट आप ध्यान में रखें कि जब भी वार होता है, वार, जंग, जहां जंग है तो जंग का ऐलान कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, हम हालत जंग में है। ये ऐलान कहां से आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आएगा। ये जो है डिफेंस से या आर्मी से या किसी और से नहीं आएगा, जीएचक्यू से नहीं आएगा। बेशक जंग जीएचक्यू लड़ता है, लेकिन ऐलान जो है वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। तो क्यों? हमारी सिक्योरिटी जो है उसमें नंबर 1 जो स्टेप है दैट इज डिप्लोमेसी। नंबर 1 स्टेप क्या है? डिप्लोमेसी। नंबर 2 स्टेप है इंटरनेशनल लॉ। नंबर 3 स्टेप है वॉर। जब पहले 2 स्टेप्स फेल हो जाते हैं तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऐलान करती है, फॉरेन ऑफिस कहती है कि जी बस हमसे नहीं हुआ, अब आते हैं जंग करते हैं। वॉर इज ऑलवेज डन फॉर द am I audible properly? Somebody said that my video has pauses. If I'm audible and visible, so please like this video broadcast once again, or write a comment so that I can refresh. Okay. So coming to Kashmir, there are 7 scenarios that I have given you, and I would like to see your contribution in this regard. If you are sitting in examination hall and you are writing on Kashmir, past, present and future, so I would like to ask you to write 3 paragraphs. 3 paragraphs. Past of Kashmir, present of Kashmir, future of Kashmir. Let me check it and then we will continue the lecture. You have 5 minutes, 5 to 6, 7 minutes for writing 3 paragraphs. Your writing is highly essential. जब तक खुद नहीं लिखोगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा. Write 3 paragraphs, past, present, future.
पैराग्राफ का मतलब है यूनिटी। यूनिटी का मतलब है एक पैराग्राफ में पास्ट, एक पैराग्राफ में प्रेजेंट, एक पैराग्राफ में फ्यूचर। इसको कहते हैं यूनिटी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को मिक्स नहीं करना, नॉट मिक्सिंग। You can post all the 3 paragraphs in one comment or 3 different comments, but together, one after the other. Introduce the history, what is going on currently, and what should happen in the future. Your suggestions, recommendations, solutions.
Okay, so let's see your productivity, your product, what you have written. So I see here the first one, Huma Khan. The Kashmir issue. The Kashmir issue. Kashmir issue has been a major bone of contention from the day of independence. Resulted in 3 wars, numerous conflicts between India and Pakistan, and severely rigid. मतलब कुछ चीज़ों का तुक नहीं बनता ना. रिजिड डिप्लोमेसी क्या होती है? कैन यू एक्सप्लेन इट प्लीज, हुमा खान? ये भी देखो, मुझे खुद नहीं पता कि द कश्मीर होता है कि कश्मीर होता है. कश्मीर इशू हैज़ बीन अ मेजर बोन. द के लिखने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है इसकी? ये देखो, रिजिड डिप्लोमेसी क्या होती है? आपके हर सेंटेंस जो है, हर वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका कोई तुक हो, कोई मतलब हो. अगर बगैर मतलब का हो तो मत लिखो उसको, रिपीटिशन मत करो. ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है, ये भी इसको कहते हैं क्लीशे. CLICHE, क्लीशे. क्लीशे क्या होता है? स्टीरियोटाइपिकल, स्टीरियोटाइप. मतलब एक चीज़ गस्सी पट्टी बन जाती है. हर बंदे इसको लिखता है, तो वो फिर एग्जामिनर को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उसकी. उसका तैयारी छोड़ो. तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट लिखो, इशू लिखो, एम्ब्रोलियो लिखो, कोई और एडियम यूज़ करो, ये मत यूज़ करो. आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल वंस अगेन. ओके. The United Nations Security Council had tried to resolve the dispute by declaring that the accession of Jammu and Kashmir to India or Pakistan should be decided through the democratic method by holding a free. हाँ, यहाँ तक तो ठीक है. Huma Khan, the best solution of the Kashmir dispute could be the right of self-determination which should be given. सही है हुमा खान, आपका कुछ लगता है मेरी बातों का असर हो रहा है. एनीबॉडी एल्स? 2-3 पैराग्राफ्स, 1 पैराग्राफ. अगर 3 आपसे नहीं लिखी जाती, इतना आपकी औकात नहीं है, तो 1 तो लिखो. ये प्रेशर में जब परफॉर्मेंस करते हैं, ये आपकी रियल परफॉर्मेंस होती है. रियल परफॉर्मेंस यही है. प्रेशर के अंदर एक बंदा गुस्सा है और फिर भी आप उसको सही परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसे मीठी मीठी गुलिया खिला रहे हैं, फिर तो हर कोई खाता है. प्रेशर में काम करना सीखो. एंगर, प्रेशर, टेंशन, गर्मी, सर्दी, फिर भी आपका परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर नहीं होता. शाकिर जैदी, बिफोर पार्टीशन कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट ओन्ड बाय हरी सिंह. ओन बाय, ये देखो इसका शकीर जैदी, इसको चेक करो. ओन बाय का वो लफ्ज़ ठीक है क्या? हरी सिंह उसका मालिक था, ओनर था, या गवर्न बाय हरी सिंह? एक एक लफ्ज़ मैटर करता है. तो ये देखो, मुझे नहीं पता खुद भी ओन का लफ्ज़ ठीक है या गलत है. व्हेन ब्रिटिश पार्टेड इंडिया एंड पाकिस्तान, पार्टीशन्ड ज़्यादा बेहतर वर्ड है. पार्टीशन्ड, पार्टीशन नाउन भी है, ये वर्ब भी है. व्हेन ब्रिटिश पार्टीशन्ड इंडिया एंड पाकिस्तान, और इससे बेहतर यह है कि व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज पार्टीशन्ड. ये भी गलत है कि भाई ब्रिटिश ने उसको पार्टीशन कर दिया. हमने खुद भी तो चाहा कि करे ना, ले इंडिपेंडेंस चाहिए. तो अब इलॉजिकल बात आप नहीं कर सकते. जो फैक्चुअल न हो उसको आप नहीं कर सकते. जिस तरह की सेफ 5 की ग्रामर के क्लास में हमने बताया कि भाई आपकी लैंग्वेज जो है वो ग्रामर के लिहाज से एक्यूरेट, फैक्चुअल होना चाहिए, लॉजिक इसमें हो. कश्मीर इटसेल्फ हैड मुस्लिम्स एंड हिंदूज. अब मुस्लिम हिंदू जो है ये प्रॉपर नाउन्स है, तो इसका M कैपिटल, हिंदू का H कैपिटल. प्रोफेशनलिज्म का डिमांड है.
हाँ, अब मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? जब आपको यूएन रिजोल्यूशंस की वो नाम या ईयर याद हो, उसका नंबर याद है, तो फिर तो टॉपर में आप आओगे। उस रिजोल्यूशंस के नंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स हैं, उसका ईयर कम से कम आपको याद हो, कोई उसका नॉमनक्लेचर, कोई नाम शाम उसका लिखे ताकि आप टॉपर में आ जाए। नासिर अली, कश्मीर इज द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया विच वाज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम का एम कैपिटल राजा। There may be some internet issue, but let me check it. Is there any internet issue? Nasir Ali, I am checking your writing. अब द प्रिंस ऑफ कश्मीर ये देखना पड़ेगा, कश्मीर का के कैपिटल, हिंदू का एच कैपिटल, आपने राजा का आर कैपिटल लिखा, कश्मीर और हिंदू का आपने स्मॉल लिखा, ये गलत है। तो ये देखना पड़ेगा को राजा था या प्रिंस था, मतलब फैक्चुअल चीजें होनी चाहिए, फैक्चुअल। ये देखो क्या क्या उसका नाम प्रिंस था, वो शहजादा था या राजा था, ये देखना पड़ेगा। गलत बयानी आप नहीं कर सकते। अमारा मुख्तार, कश्मीर हैज बीन रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट लिंगरिंग एंड कम्प्लेक्स इश्यूज सिंस द पाकिस्तान एंड येट टू बी सॉल्व्ड। अब हमारा मुख्तार आप गलती क्या कर रही है, आप करते हैं इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। वर्ड जो है, वर्ड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वर्ड्स में आपने इकोनॉमी करनी है। इकोनॉमी का मतलब क्या है, सोच समझ के अल्फाज का इस्तेमाल करना। जिस तरह का आप नोट पैसे लगाते हैं, बड़े सोचते हैं कि जी करूँ ना करूँ, तो जब आपने ऊपर लिखा मोस्ट लिंगरिंग कॉम्प्लेक्स और फिर आपने खामखा लगा दिया दुम एंड येट टू बी सॉल्व्ड, तो लिंगरिंग के साथ येट टू बी सॉल्व्ड जो है ये क्या है, ये रिडंडेंट है। एग्जामिनर सख्त नफरत करता है रिडंडेंसी से। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, खामखा के अल्फाज इस्तेमाल मत कर, ये कट्टी मत लिखो। बाकी ठीक लगता है। हाँ जी, और है कोई बंदा बंदी का जात, किसने कुछ लिखा है या मुझे सुनोगी जी? मदारी की तरह मैं बोलता रहूंगा और तुम जो है ना शाम की तरह इधर ऐसे सर हिलाते रहोगे। खुद भी कुछ करो, लिखो। कश्मीर पे आप नहीं लिख सकते, बड़ी पाकिस्तानी बनते हो। कश्मीर को आपने प्राइमरी क्लास से लेकर सेकेंडरी क्लासेस, टर्शरी, हर जगह CSS, PMS, पाकिस्तान अफेयर्स, हर जगह आपने कश्मीर कश्मीर करके दिखा है। रियलिटी क्या है कि आप इस पर लिख सकते हैं कि नहीं, आप इसको एग्जामिनर को प्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं। So I will highly suggest, because we have only 15 minutes, that please read the article that I have given you on Kashmir, the 7 scenarios. बाकी तो आपके टेक्स्ट बुक्स में हर जगह कश्मीर भरा हुआ है, विकिपीडिया भरा हुआ है, पाकिस्तान स्टडीज़ में है। कश्मीर कोई रॉकेट साइंस है या कोई तोराबान का देव या कोई ख़ाफ का वो नहीं है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि कश्मीर के बारे में आपके पास मालूमात नहीं है। नईम खान को इसलिए सुनते हैं कि जी नईम खान हमें कश्मीर के बारे में बताएगा, गूगल भरा हुआ है। लेकिन जो मेरा सजेशन है वो इसका 7 सिनेरियोज मॉडल है, 7 सिनेरियोज मॉडल। सो कैन एनीबडी कॉपी पेस्ट क्विकली फ्रॉम द bbc.com 7 सिनेरियोज ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर के लिए बीबीसी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, 7 सिनेरियोज बनाए हैं, 7 सिनेरियोज। तो जब भी आप कश्मीर पे लिखते हैं, थोड़े से हिस्ट्री वगैरह, राजा, प्रिंसली स्टेट, 1948 वार, 1965 वार, फिर जो है आपका शिमला एग्रीमेंट जो 71 के बाद हुआ था, या फिर आपका 65 के बाद जो आपका एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के साथ,
प्लेबिसेट जो है, यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशंस, उसके नाम, रिजोल्यूशंस के नाम, ईयर्स, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी कहानी हो गई। उसके बाद आपका कंपोजिट डायलॉग और ओनली कश्मीर फोकस्ड डायलॉग इंडिया के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। कोई आपसे रिएक्शन नहीं आ रहा। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो प्लीज लेट मी नो। अच्छा, चौधरी सिकंदर का भी आ गया। हिस्टोरिकली इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, the conflict stood between both the countries. The land of Kashmir was mostly populated. After the dawn of Pakistan as a separate state, Kashmir had no need of quoting BBC के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारा मुख्तार साहिबा आप ये करें कि हमें जो 7 सिनेरियोज है, शाकिर जैदी और सिकंदर आपकी राइटिंग ठीक है, कोई इतनी बड़ी उसमें गलती नहीं है। तो ये जो है अपना जो 7 सिनेरियोज है, यू हैव टू राइट ऑल द 7 सिनेरियोज, ऑल 7 पॉसिबल सॉल्यूशंस, एंड देन यू हैव टू रिकमेंड द solution which is number 2, I think, number 2 solution which suits Pakistan or which is according to the national interest and foreign policy of Pakistan. As we discussed in the beginning of the class, what is national interest and what is foreign policy of Pakistan, and you saw from mofa.com.pk that Kashmir is part and parcel of the foreign policy of Pakistan. तो आपके पास एक सॉलिड जवाब कैसे आएगा? सॉलिड जवाब तब आएगा जब आपके पास 7 सिनेरियोज क्लियर हो। एंड फाइनली यू विल रिकमेंड द सिनेरियो which is according to our foreign policy and our national interest, keeping in view Kashmiris themselves as well. The solution should be acceptable to Kashmiris and it should be acceptable to Pakistan. It may not be acceptable to India, but it should be according to the national interest of Pakistan. So please, I need your assistance. Copy paste the 7 scenarios. Scenario number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then we will decide that which scenario that is suitable for the national interest of Pakistan. You can describe all the scenarios, but finally you have to recommend one which agrees with our foreign policy. So please go to the article bbc.com, 7 scenarios of the Kashmir issue. Scenario number 1 is status quo. Status quo. Q-U-O. Status quo means current situation. Okay, I received your comments a bit late. Thank you for sharing scenario 1. Yes. Meena Gulale, thank you. The status quo Kashmir has been a flashpoint between India and Pakistan for more than 50 years. ये चूँकि पुराना है, more than 70 years. ये नहीं कि उधर पेपर में भी 50 years लिखो। अभी 70 साल हो गए, ये 20 साल पुराना आर्टिकल है, लेकिन चीज़ें वही है कि कश्मीर उधर ही है, कहीं गया नहीं है। More than 70 years. Currently, a boundary, the line of control divides the region in two with one. तो स्टेटस को जो है वो सिनेरियो नंबर 1 है। पाकिस्तान अभी तक ये नहीं चाहता कि भाई स्टेटस को रहे।
मतलब रियलिस्टिक होगा, लेकिन ये हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हम तो अपने बोर्ड पे लिखते हैं जी श्रीनगर 3000 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो भी है, हम तो अभी भी श्रीनगर पे झंडे लहराना चाहते हैं। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो श्रीनगर को कब्जा करना है, ये नहीं करना कि भाई स्टेटस को रहे, आप उधर हम इधर। अभी तक हमारा ये डिक्लेयर्ड नेशनल फॉरेन पॉलिसी नहीं है। सिनेरियो 2 क्या है? कश्मीर जॉइंस पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली फेवर्ड दिस एज द बेस्ट सोल्यूशन टू द डिस्प्यूट। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, दिस इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये टिपिकल लैंग्वेज है, सॉलिड स्टार्टर है कि कश्मीर इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब हमने इंडिया को पार्टीशन किया, पाकिस्तान बना, इंडिया। फार्मूला क्या था? मुस्लिम मेजॉरिटी, कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उसी फार्मूले के तहत कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे लिए बेहतरीन सिनेरियो है और अभी तक हम सिनेरियो 2 पे कायम है, इसको हमने छोड़ा नहीं है। हो सकता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी मीन्स बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे लोग लगे होंगे जो स्क्रीन पे नहीं आते, बातचीत कर रहे हैं, यार पर छोड़ो आप उधर हम इधर, लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बना दो, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, सी पैक जो है उसको इशू नहीं होगा। चाइना भी चाहता है कि यार बस करो, इस चीज़ को रिजॉल्व करो, क्योंकि चाइना जो है बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है, 60-70 बिलियन डॉलर्स ऑफ सी पैक। कल इंडिया कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, आज़ाद कश्मीर हमारा है, और इंडिया आके उस पर कब्जा करता है। चीन कहते कि हम कहाँ गए, हमारे सारा खर्चा तो आप लोगों ने उड़ा दिया। तो सुनी सुनाई बातें हैं, अभी स्क्रीन पे नहीं है, कि चाइना भी चाहता है कि यार आप उधर हम इधर, ये सब ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट करो, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, और मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं श्रीनगर वगैरह वो इंडिया का। वाह जी, खैर सलाह, सब ठीक है। तो ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो है हो सकता है, लेकिन ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो क्लियर डिप्लोमेसी, अभी तक हमने इसको अनाउंस नहीं किया है। सिनेरियो 3, कश्मीर जॉइंस इंडिया। वी डोंट नॉट वांट दिस। सॉल्यूशन है मसले का, लेकिन हम नहीं चाहते, नाइदर पाकिस्तान नॉर इंडिया। So there may be some internet issue, please bear with me. Scenario 4, independent Kashmir. Scenario 5, 6, 7, please anybody can assist me quickly. Copy paste, I cannot copy paste from there. So Meena Gulale has given us 4 scenarios. Scenario 1, status quo. Scenario 2, Pakistan. Scenario 3, India. Scenario 4, independent Kashmir. So we have to go for the scenario 5, 6 and 7. So you have a compact language for giving these options. Scenario 7, I didn't see scenario 5. 4 आ गया, मीना गुलाले I saw 4, 5 and 6 I don't see, please copy paste it again. Scenario 7, Chenab formula. This plan first suggested in the 1960s would see Kashmir divided along the line of the river Chenab. ये भी मुशर्रफ के ज़माने में चला था दोबारा, कि चेनाब जो है उस पर आप ये पार्टीशन जो है वो आप कर दे।
So please copy paste 5 and 6. So you have compact language for exam, all the 7 scenarios, present the 7 scenarios to the examiner, suggest that the national interest of Pakistan is scenario number 2. What is the solution? Solution is number 1. Please write it. Number 1. Do not present Kashmir just a territorial dispute. ये बड़े important points है. We should not present scenario 5 a smaller independent Kashmir. हाँ, छोटा सा कश्मीर जो है ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहे, मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो मकबूजा कश्मीर में है, श्रीनगर में है, आज़ाद कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सिनेरियो नंबर 5 है. और फिर जो है सिनेरियो नंबर 6 रह गया एक. 7 सिनेरियोज हमने डिस्कस किए. अभी मैं आपको देता हूं सॉल्यूशन के लिए पॉइंट्स. नंबर 1 पॉइंट ये है कि डू नॉट प्रेजेंट कश्मीर. सिनेरियो 6 जो है फरखंदा जैब, थैंक यू, इंडिपेंडेंट कश्मीर वैली. तो ये 7 सिनेरियोज है, इसके अलावा कोई और हल है ही नहीं. मीना गुलाली, प्लीज बी प्रोफेशनल. स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल डी. आपका डी कैपिटल होना चाहिए. डोंट प्रेजेंट कश्मीर जस्ट अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट. टेरिटोरियल, टेरिटरी, इलाका. ये सिर्फ जमीन का जंग नहीं है. इट इज एन इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. पाकिस्तान ये नहीं कहता कि यार ये हमारे ज़मीन का झगड़ा है, जिस तरह की पैलेस्टाइन है. आप एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैलेस्टाइन एंड कश्मीर. कंपेयर एंड कंट्रास्ट नेगोरो कराबाग, अजरबैजान, आर्मीनिया एंड कश्मीर. इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं. तो वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, वो ज़मीन पे झगड़ा है. ये सिर्फ ज़मीन पे झगड़ा नहीं है. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंसान जो है वो क्राइसिस में है, इंसानी जिंदगी जो है वो खतरे में है. ह्यूमन राइट्स जो है वहां उसकी पामाली हो रही है. नॉट येट यू कैन मेंशन मुशर्रफ, बट यू कैन नॉट सजेस्ट इट. इसको आप सजेस्ट नहीं कर सकते. ओके, सो 3 पॉइंट्स हो गए. नो टेरिटोरियल डिस्प्यूट, प्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन राइट्स इशू, प्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन क्राइसिस इशू, क्रिटिकल इशू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इशू. ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट्स में फर्क है. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तब होता है जब झगड़ा है, ब्लड शेड है, लोग मर रहे हैं. इसको ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं. ह्यूमन राइट्स ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अमन है, सब ठीक है, लेकिन ह्यूमन राइट्स नहीं है. तो वो ह्यूमन राइट्स है. तो मीना गुलाली जो है आप इसमें फ़र्क करें प्लीज़. ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट्स में फ़र्क है टेक्निकली. ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्या होते हैं? जलजला है, ब्लड शेड है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, उसको ह्यूमैनिटेरियन इशू कहते हैं. ह्यूमन राइट्स ये है कि सब अमन अमान है, लेकिन इंसानों को उसकी बुनियादी ज़रूरियात जो है वो नहीं है. हाँ, पैलेस्टाइन में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वो कंपेयर है. कंट्रास्ट ये है कि वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है. नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान रिकमेंड्स प्लेबिसेट, रेफरेंडम. Pakistan does not claim that Kashmir must be part of Pakistan. Pakistan says that let's ask from Kashmiris what they want, and this is our high moral ground. पाकिस्तान का जो हाई मॉरल ग्राउंड है वो इसी पॉइंट पे है that we
do not contest it as a territorial dispute. We say that it is humanitarian crisis, it is human rights issue, and we say that let Kashmiris decide what they want. Plebiscite, United Nations resolutions. कश्मीरी कहे कि भाई हमने किधर जाना है, इंडिया के पास जाना है, पाकिस्तान के पास आना है, कुछ और करना है, तो ये हमारा हाई मॉरल ग्राउंड है. इंडिया कहता है कि नहीं जी, बस ये आटू टांग है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इंडिया है, हम कोई ज़रूरत नहीं है. कोई आपको कहेगा कि जी लाहौर से पूछो कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है, हम क्यों रेफरेंडम करें. तो उनका ये प्लेबेसेट करे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी पूछो उनसे. नंबर थर्ड पॉइंट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इशू. इंटरनेशनलाइजेशन, डायनामिक डिप्लोमेसी, रेजिंग कश्मीर इशू ऑन इंटरनेशनल फोरा, awareness, educating people. So this is called internationalization. इसको इंटरनेशनलाइज करो, इसको एक इशू बनाओ, लोगों को कहो जी कश्मीर का भी इशू है, कश्मीर इज बर्निंग, प्लीज सेव कश्मीरीज. इसको मरने मत दे ताकि मर न जाए. एक दफा ये हम भूल गए तो पूरी दुनिया तो वैसे भी भूल जाएगी. सो वी हैव टू प्रेजेंट कश्मीर इन अ रैशनल वे टू द वर्ल्ड, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव द सेम इमोशनल अटैचमेंट विद कश्मीर एज वी हैव द इमोशनल अटैचमेंट. सो गो टू माई टाइम लाइन. आई गेव अ लेक्चर ऑन कश्मीर इन कैनेडा व्हेन आई वाज अ चीफ गेस्ट इन अ प्रोग्राम. तो कश्मीर पे मैंने एक शॉर्ट टॉक दिया है. टाइम लाइन पे जब मेरे जाओगे तो मेरे टाइम लाइन पे कश्मीर लिखो तो वो आ जाएगा मेरा लेक्चर. सो यू विल बी लिसनिंग टू दैट एंड मोर पॉइंट्स विल बी आल्सो क्लैरिफाइड. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू टुमारो. इफ देयर आर क्वेश्चंस सो प्लीज आस्क इन सेफ टू.